बच्चे इन द लास्ट क्लास एक तो अभी मैंने आपको एक पीडीएफ डाली होगी. यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दोज पॉइंट्स. इन द लास्ट क्लास वी डिड द पोटेंशियल एंड टुडे नाउ वी स्टार्ट विद द इक्विपोटेंशियल surfaces. बच्चे recall the previous concepts that we have done. In that there was one formula, E is equal to minus dV by dr. Fine. So from here we come to the concept of equipotential surfaces. So which surfaces are known as equipotential? The name itself is explanatory. Equipotential वो surfaces जिन पे potential आपकी क्या होती है, same. So E is equal to minus dV by dr में, or I write it in more. Actually the formula was minus E dot dr is equal to dV. So equipotential surface is the one at every point of which the potential is constant. So if the potential is constant, it means that dV is 0. अगर potential हमें कैसे surface की बात करें, suppose I take a point charge. मैंने यहाँ एक point charge लिया जिसको मैंने center पे रख दिया of a spherical surface. एक स्फेरिकल सरफेस लिया, उसके सेंटर पे अगर हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया बच्चे, तो जो हमारे इस स्फीयर के, इस स्फेरिकल सरफेस के पॉइंट्स हैं, इफ यू कैन सी, हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है बच्चे? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज is equal to kq by r. So if potential is kq by r, I talk about this point A, I talk about this point B or this point C, anywhere on this surface. एक स्फेरिकल सरफेस आपने लिया, उस स्फेरिकल सरफेस के पे अगर आप 2-3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं A, B and C, तो then you will see कि distance of all these points from the center of sphere is same. It is kq by r. So when the distance of all the point is same, it means A की potential is equal to potential of B is equal to potential of C, because R के A की potential क्या है? kq by r. B की potential क्या है? kq by r, because सबका distance from the center जो है वो बेटा same है. So अगर आप RA, RB, RC लिखते हैं तो RA is equal to RB is equal to RC is equal to R. तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूं बच्चे, तो इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल मेरे पास क्या है? सेम. इट मींस ए और बी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, V इज सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? dV क्या हो गया? 0. और अगर dV 0 हो गया तो इट मींस E डॉट dr इज 0, विच मींस E हैज टू बी परपेंडिकुलर टू dr. E जो है वो हमारे dr का क्या है? परपेंडिकुलर. सो E is perpendicular to dr. This simply means that field is at right angle to the surface. dr मैंने क्या लिया? dr मैंने ये लिया कि अगर मैं इसी सरफेस पे A से B जाती हूँ, if I go from A to B via any path, via this arc APB, or I can go from here to here like this. So अगर VA और VB दोनों सेम है तो I don't have to do any work. Because हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिफाइन किया था? If you go back to potential difference, so potential difference was defined as the work done to take a unit positive test charge from one point to the other point in the field of some source charge. अगर हम potential difference की definition देखते हैं बच्चे, तो potential difference is defined as the work done to take a unit positive test charge from one point to the other point in the field of some source charge. तो हम इस source charge के field में A से B अगर जाते हैं तो I don't have to do any work. हमें कोई work नहीं करना पड़ता, because we are going from the same potential to the other point which has also got the same potential. From one point having say potential of 10 volt to other point having the potential of 10 volt. अगर 10 volt से 10 volt जा रहे हैं तो dV तो है ही नहीं. अगर dV नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है then we don't have to do any work to take a unit positive test charge from the point A to the point B.
हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा. दैट इज वाई dv इज इक्वल टू 0. अगर dv 0 है तो दिस मीन्स E डॉट dr इज 0 विच मीन्स E इज परपेंडिकुलर टू dr. सो यहाँ से हमारा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वो ये आया कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर एट राइट एंगल टू द फील्ड, perpendicular to field. This means if I have a field along the x-axis, अगर हमारे पास field ऐसा है जो x-axis के along है तो ये surface है बेटा. So हमारे पास equipotential क्या बनेगा? Equipotential will be a surface which will be perpendicular to x-axis. So perpendicular to x-axis is yz plane. Let us suppose this is my field. Then फील्ड अगर मेरा एक्स एक्सिस में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी अलोंग द वाई जेड प्लेन. एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है बेटा. द नोट्स आई हैव गिवन यू उनमें ये पॉइंट्स बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत क्लियरली नोट्स में गिवन है. तो आप एक बार पूरे नोट्स पढ़ेंगे फ्रॉम द पेज नंबर. If I tell you the page number, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द पेज नंबर 13. तो पेज नंबर 13, 14, they are and even 12. So 12, 13 and 14. These are the 3 pages which have been given to you on the equipotential surfaces. So equipotential surfaces का जो पूरा gist है, जो पूरा हमारे पास क्रक्स है वो पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है. ऑल द पॉइंट्स, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है बट वॉट एवर पॉइंट्स आर देयर दे हैव बीन क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द नोट्स. पेज नंबर 12, 13 and 14. So if the field is along x-axis, the equipotential surface will be along the yz plane. If the field is along y-axis, then equipotential surface will be in the equipotential surface will be how much? Which plane? Equipotential surface will be xz plane. तो आपको perpendicular ढूंढना है. Equipotential will always be perpendicular to the field. तो एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया. फर्स्ट पॉइंट अबाउट द equipotential surface हमारे पास हो गया that no work is required to be done in order to move on an equipotential surface. यानी अगर मैंने ये एक पॉइंट चार्ज लिया तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करूं तो ऑब्वियसली द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी द कंसेंट्रिक स्फीयर्स. मतलब ऑल द स्फीयर्स, क्योंकि हमारी पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की क्या होती है बच्चे? के क्यू बाय आर. सो सपोज करो 5 सेंटीमीटर पे मुझे एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है तो दैट विल बी अ स्फीयर ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस. दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. It is like this. Fine. So बच्चे अगर ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, I have drawn 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस 1, 2, 3. What am I trying to say? First point we did that we don't have to do any work in order to move on an equipotential surface. यानी मुझे अगर फर्स्ट सरफेस पे मूव करना है from this point A to this point B to this point C, I don't have to do any work. चाहे मैं A से B जाऊं, चाहे मैं A से C जाऊं, चाहे मैं B से C जाऊं, any path I may take, I don't have to do any work. So work done, ये आपके conceptual questions आते हैं बेटा. What will be the work in order to move a charge from A to B और A to C via ABC? कहीं भी आप मूव कर लीजिए. अगर आप इक्विपोटेंशियल पे किसी भी पाथ से मूव करते हैं या किसी भी पॉइंट से मूव करते हैं from one point to the other point, you don't have to do any work. One thing is this, because dv is equal to 0 and work done is equal to dv. तो अगर dv 0 है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. Now suppose this is my one equipotential surface. इसकी पोटेंशियल है let us suppose 60 volt. The next potential मैंने लिया let us suppose 30 volt. Next मैंने लिया let us suppose 20 volt. So now these are the 3 equipotential surfaces. फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस की पोटेंशियल है 60 वोल्ट, यानी A की भी 60 वोल्ट, B की भी 60 वोल्ट, C की भी 60 वोल्ट. फाइन. सेकेंड की अगर इफ आई ड्रॉ द पॉइंट से D, P, S, एनीथिंग, सो D की, P की, S की, इन सब की पोटेंशियल क्या होगी? एंड दे मे बी एनीवेयर हियर. This may be the point P. This it is not necessary कि they are going to be the parallel positions.
आपको जरूरी नहीं है कि पैरेलल पोजीशन बनानी है. लेट अस सपोज कोई भी 3 पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स ले लिए. सो ऑन दिस सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सब की पोटेंशियल सेम होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 30 वोल्ट. फाइन. थर्ड सरफेस इज योर सरफेस ऑफ 20 वोल्ट. इट मीन्स इसके सब पॉइंट्स की पोटेंशियल जो है वो 20 वोल्ट होगी. लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी हमने फर्स्ट सरफेस पे लिए, एस पी डी मैंने सेकंड सरफेस पे लिए. दिस इज एनी पॉइंट एम, दिस इज एनी पॉइंट एल या एन, दिस इज एनी पॉइंट, कुछ भी आप इसको लेबल कर लीजिए. क्यू, क्यू तो जनरली वी टेक फॉर द चार्ज टी. सो एम एन टी इन सब की पोटेंशियल सेम है. बट बच्चे इफ आई गो फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल टू द अदर, अगर मैं 60 वोल्ट से 30 वोल्ट आऊंगी, यानी इफ आई गो फ्रॉम इन दिस फिगर आई एम रबिंग इट. सो एक तो हमारे पास ये आ गया पॉइंट की वर्क डन टू मूव अप चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0. यूनिट चार्ज को मूव करने का वर्क डन 0 है तो 10 कूलम के चार्ज को मूव करने का भी 0 है. तो अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता. यू मे गो वाया एनी पाथ ऑन द गिवन सरफेस. सेकेंड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड. अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज का फील्ड हमारा क्या होता है बच्चे? रेडियली आउटवर्ड. The field lines are radially outward and we know that the concentric spheres will be the equipotential surfaces for the point charge. अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो हमारे 1 मार्कर आते हैं. draw the equipotential surfaces for the uniform field which is increasing along x-axis, a field which is decreasing along y-axis, for the point charge, for the dipole. फाइन. तो एक तो हमें इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करने आते हैं. व्हेन वी हैव टू ड्रॉ वी हैव टू कीप वन पॉइंट दिस इन माइंड दैट द इक्विपोटेंशियल शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ई. देयर इज वन अनदर पॉइंट जो हम डिफरेंट इक्विपोटेंशियल की स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे. फाइन. और दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि व्हाट विल बी द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी टू द पॉइंट सी. नाउ आई एम राइटिंग हियर, सी, इफ यू गो फ्रॉम ए टू बी or A to C or B to C, you don't have to do work done is 0 क्योंकि आप एक ही इक्विपोटेंशियल पे मूव कर रहे हैं. A B C, dV is equal to 0 and VA is equal to VB is equal to VC is equal to 60 volts. The example that we have taken. Fine. Now I come to the second surface. ये मेरा फर्स्ट सरफेस था जो मैंने वहां ड्रॉ किया. Now I talk about the second surface. So if I talk about the second surface, then on the second surface there are the points like S, D and P. So no work is required to be done if we have to move. No work is required to be done to move from S to D to P to S or anywhere. So in सबकी potential same है. Vs is equal to Vd is equal to Vp but it is equal to 30 volts. Similarly, you have V for the third surface. If I talk about for the third surface, I have chosen 3 points to be P, M and N. It means Vm is equal to Vn is equal to Vt is equal to 20 volt. Fine. ये तो हमारे पास हो गया कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस. पर बच्चे अगर मुझे A से S आना है, व्हाट इफ आई हैव टू गो फ्रॉम A टू S, टू मूव फ्रॉम A to S or A to D or A to anywhere on the second surface or on the third surface, A to T or A to M, anywhere. If I have to move from one surface to the other, one equipotential surface to the other equipotential surface, one equipotential surface to the other इक्विपोटेंशियल सरफेस. जब आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक मूव करना है, देन वर्क हैज टू बी डन. देखो बच्चे,
अगर आप एक ही सरफेस पे मूव कर रहे थे तो आप सेम पोटेंशियल में जा रहे थे 60 से 60 से 60 नो वर्क। बट अगर आप फर्स्ट से सेकंड आते हो सो यू आर गोइंग फ्रॉम 60 टू 30 और 60 to 20, then in that case the work has to be done and that work done will be equal to dV. And by writing the expression for dV, you will have to see that whether you are going from high potential to low potential or you are going from low to high. Like अगर आप A to D आते हैं या A to M आते हैं from first to second to third, यानी अगर हम फर्स्ट सरफेस से लेके बच्चे सेकंड में जाएं या थर्ड में जाएं, इन दैट सिचुएशन इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने यहाँ पे लिया, मैंने लिया 60 30 20, यानी हम 60 से 30 या 30 से 20 जा रहे हैं और ए फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड और सेकंड टू थर्ड। इन बोथ दीज केसेस वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन सी आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं, द वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सी यू आर गोइंग इन फील्ड लाइंस में हमारी रेडियली आउटवर्ड है और आप भी आउटवर्ड ही जा रहे हैं, तो वर्क डन विल बी by the electric field and in that case dV will be equal to initial potential minus final potential. Fine. बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, when the work is done by the electric field we use this negative sign minus E dot dr is equal to dV. Fine. And when the work will be done by the external agent, because while deriving this expression हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया था dW इज इक्वल टू माइनस du, जो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड है। ये नेगेटिव साइन वहीं से ही आया हुआ है। सो व्हेन वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल यूज माइनस E dot dr is equal to dV, and when work will be done by the external agent then we will use E dot dr is equal to dV. Then we don't use this negative sign because work done by the electric field will be equal and opposite to the work done by the external agent. तो electric field का work done जो होता है वो external agent के work done से equal और opposite होता है। बहुत सिंपल सी दो चीजें याद रखनी है। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लो एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, यू हैव टू यूज दिस नेगेटिव साइन। और अगर आप फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सपोज आई गो फ्रॉम, इन ऑर्डर टू गो, बच्चे यू हैव नोटेड इट डाउन, ये नोट कर लीजिए बेटा। ये एग्जाम्पल वगैरह आपके नोट्स में नहीं है, बट रेस्ट ऑल द थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड। एग्जाम्पल तो मैंने अभी समझाने के लिए लिया। फाइन। सो इफ आई गो फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड, इन ऑर्डर टू गो टू, when we move from, when a charge is moved from second or third to first, means either from second to first or from third to first. third to first जा रहे हैं तो 20 वोल्ट से 60 वोल्ट जा रहे हैं, second to first जा रहे हैं तो 30 वोल्ट से 60 वोल्ट जा रहे हैं, और third to second, in any case, which means in both these cases where are you going? You are going from low potential to high potential, which means you are going against the field. Field was radially outward और आप field के against जा रहे हैं. In that case you will have to do the work done, and then while writing dV we will write final minus initial, और जब आप ये expression use करते हैं तो आप E dot dr is equal to dV use करते हैं. Which one and the same thing आप किसी भी तरीके से लें. अगर आप फील्ड का वर्क डन लेंगे तो माइनस आएगा, एक्सटर्नल एजेंट का करेंगे तो प्लस आएगा. Is this point clear to you? So now one thing that is clear कि if I have to go from one point to the other on the same equipotential, I don't have to do any work. But if I have to go from one point to the other on the two equipotentials, different equipotentials, then you have to do the work. Then that will be your final minus initial, depending on whether you are going from the low potential to high potential जा रहे हैं तो final minus initial, और high to low जा रहे हैं तो initial minus final. Am I clear? ठीक है. Now this was one thing about the equipotential surface. Equipotential surfaces are at right angles to the electric field. Now another very important point, that if I have to construct an equipotential surface for uniform electric field or the variable electric field, then is there anything else that we need to take into account other than this? मतलब perpendicular surface तो हम बनाएंगे जब हमारा field is along one particular direction. Suppose I say field is along the x-axis. Fine.
सो व्हेन द फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आपके इक्विपोटेंशियल्स का डिस्टेंस, द स्पेसिंग बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल कैसी रहेगी. फाइन. सो E dot dr minus E dot dr is equal to dv. So for dv to be constant, अगर मैं dv constant ले लूं, let us suppose I draw the equipotentials. In this case I have not taken the dv to be here. dv means आपके दो सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंस. देखिए बच्चा, ये इक्वेशन तो वैलिड है. सेम सरफेस के लिए था तो dv 0 हो गया. अगर आप एक ही सरफेस पे a से b जा रहे हैं तो dv नहीं है. बट अगर आप a से d आ रहे हैं या a से m आ रहे हैं तब तो dv है. सो इफ आई से आई हैव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, one is say 10 volt, another is, rather it should be 50, then 40, then 30, then 20. Now can you see something? These are the parts of concentric spheres. अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज का फील्ड बनाऊं, पूरे स्पेस के विषय में उनकी आर्क्स ले रही हूँ, so we know that field is inversely proportional to r square. So as you are going away, the field is decreasing. So it means इसका field जो है वो मेरा decreasing field है. It means the field is decreasing. Now if the field is decreasing, then and I have drawn 50, 40, 30, 20, which means इन दोनों के बीच का dv. Now I am talking about the potential difference between the two surfaces. This is dv1, this is dv2, this is dv3, or I can say this is dr1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, this is dr2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, and this is dr3. यानी ये मेरा हो गया फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस. रादर ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. मैंने 4 सरफेसेस बनाए और इन चारों की पोटेंशियल्स का बीच का, मतलब दो सक्सेसिव सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो 10 वोल्ट दिया. फर्स्ट सरफेस मैंने 50 वोल्ट का बनाया, सेकेंड मैंने 40 का, बिकॉज एज वी गो अवे फ्रॉम द चार्ज द पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग. फाइन. सो जितना आपका पोटेंशियल फील्ड कम हो रहा है तो पोटेंशियल भी आपका कम हो रहा है. फील्ड इज अलोंग द डिक्रीजिंग, इट गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. फील्ड लाइंस गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. 50, 40, 30, 20. अगर मैं इन दो सरफेसेस की बात करूं, फर्स्ट और सेकेंड की, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस के बीच का मेरा dv1 जो है वो कितना है, 10 वोल्ट. सेकेंड और थर्ड सरफेस के बीच का भी dv2 जो है, यानी इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 10 वोल्ट. एंड थर्ड और फोर्थ के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 10 वोल्ट. सो इट मीन्स इफ आई टॉक इन सब सरफेसेस का रिलेटिव में बात करूं तो इनके लिए dv मेरा क्या है, कांस्टेंट. आई हैव चूजन द सरफेसेस हुज पोटेंशियल वेरीज एट कांस्टेंट रेट. यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट, सेकंड और थर्ड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और थर्ड और फोर्थ का भी 10 वोल्ट. आई हैव रिटन dv1, dv2, dv3. सो इट मीन्स dv मेरा क्या है बच्चे, कांस्टेंट. तो अब अगर मेरा dv कांस्टेंट हो गया फॉर कांस्टेंट dv, अब ये वो dv है जो मैं दो सरफेसेस के बीच की बात कर रही हूँ. एक सरफेस की तो बात हम कर चुके हैं कि अगर एक सरफेस पे ही मूव करना है तो dv है ही, तो वर्क करना ही नहीं. बट अगर आप एक से सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड से फोर्थ में जा रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि इनके बीच का रिलेटिव स्पेसिंग कितना होगा अगर मैं कांस्टेंट dv के सरफेसेस बनाऊं. यानी 10, 20, मतलब सबके बीच का डिफरेंस है तो 10 और 10, 20, 30, 40, 50, 60. From here to here it will increase. Fine. So what is dr1, dr2 and dr3? Can you find any relation between dr1, dr2, dr3? dr1 is the distance between these two surfaces, dr2 is the distance between these two, dr3 is the distance between. मैंने जिस ऑर्डर में बनाया वो ये था कि dr3 is greater than dr2 is greater than dr1. Can you tell me why? क्योंकि बच्चे जितना आप दूर होते जा रहे हो उतना आपका फील्ड जो है वो कम हो रहा है. अगर फील्ड कम हो रहा है तो इक्विपोटेंशियल्स के बीच का स्पेसिंग इंक्रीज होगा, बिकॉज इफ dv इज कांस्टेंट देन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr. बच्चे इस फॉर्मूले को जब यूज करना है तब आपने ये देखना है कि आप किसके लिए यूज कर रहे हो. आप एक ही इक्विपोटेंशियल के लिए यूज कर रहे हो तो dv भी एक का आएगा जो 0 होगा और dr भी a और b के बीच का आएगा.
अगर आप दो इक्विपोटेंशियल्स की बात कर रहे हो, वी आर जंपिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड और फ्रॉम सेकंड टू थर्ड और वाइस वर्सा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कहीं भी मूव कर रहे हैं, तो तब हमें देखना है, तब हमारा रिलेशन रहेगा माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी। बट अगर dv मैंने कांस्टेंट ले लिया, देन E is inversely proportional to dr. What does it mean? It means in the regions जहाँ fields ज्यादा होगा, वहाँ इक्विपोटेंशियल के बीच, when the field will be more, dr will be less, when field will be less, dr will be more. E is inversely proportional to dr. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि in the regions of stronger field, if the field is stronger, in the regions of stronger field, the equipotentials are closely spaced, and in the regions of weaker field, equipotentials are far apart. आपको ये वाली प्रॉपर्टी कुछ याद दिला रही है? Same thing I have read somewhere else also. In the regions of stronger field, equipotentials are closely spaced, and in the regions of weaker field, equipotentials are far apart. Equipotentials are closely spaced. The same property we did for the field lines. अगर आपको याद हो तो हमने field lines में ये किया था कि in the regions of stronger field, the field lines are closely spaced. In the regions of weaker field, field lines are far apart. यानी ये हमने किया था नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो थी वो हमारी थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, यानी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया जो था वो हमारा प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड था। यही हमारा गॉसेस लॉ ने भी बाद में प्रूव किया था। सो हमने क्या, जहां हमारे पास फील्ड ज्यादा होगा वहां फील्ड लाइंस विल बी क्लोजली स्पेस्ड, इन द रीजन्स ऑफ वीकर फील्ड, फील्ड लाइंस विल बी फार अपार्ट। यही सेम प्रॉपर्टी मेरी इक्विपोटेंशियल्स की भी है। इन द रीजन्स ऑफ द स्ट्रॉन्गर फील्ड, इक्विपोटेंशियल्स आर क्लोजली स्पेस्ड, इन द रीजन्स ऑफ वीकर फील्ड, इक्विपोटेंशियल्स आर फार अपार्ट, बिकॉज E is perpendicular to dr. बेटा जब E is perpendicular to dr है तो जो मेरा फील्ड के लिए वैलिड है वही मेरा इक्विपोटेंशियल के लिए भी। dr क्या था? dr is the distance on an equipotential surface. So E is perpendicular to equipotential या equipotential is perpendicular to field, एक ही बात है। So अगर फील्ड और इक्विपोटेंशियल पैरेलल हैं, सॉरी परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब जो रिलेशन आपका फील्ड के लिए है वही इक्विपोटेंशियल के लिए भी होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। सो इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड, फील्ड लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड, इन द रीजन्स ऑफ वीकर फील्ड, फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट। तो जहां हमारी फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड हैं, जहां फील्ड ज्यादा है, वहां हमारे इक्विपोटेंशियल्स भी क्लोजली स्पेस्ड होंगे। सो इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड, इक्विपोटेंशियल्स आर क्लोजली स्पेस्ड, इन द रीजन्स ऑफ वीकर फील्ड, इक्विपोटेंशियल्स आर फार अपार्ट। वही सेम रिलेशन हमारा इक्विपोटेंशियल्स का भी होता है। सो आप देखिए जितना पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं आपका फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए dr आपका इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों का dr कम है, इन दोनों के बीच का स्पेस और ज्यादा हुआ, इन दोनों के बीच का स्पेस और भी ज्यादा हो गया। सो इसके बेसिस पे हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वन थिंग, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल्स विल बी इक्वी स्पेस्ड। अगर फील्ड ही यूनिफॉर्म है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो फॉर यूनिफॉर्म फील्ड हमारे पास इक्विपोटेंशियल जो है वो होगा तो परपेंडिकुलर टू फील्ड। सपोज करो फॉर यूनिफॉर्म फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, अगर फील्ड मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इक्विपोटेंशियल, हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। इक्विपोटेंशियल किस प्लेन में होगा? फर्स्ट पॉइंट कि इक्विपोटेंशियल विल बी इन द वाई जेड प्लेन। फाइन। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज वाई जेड, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इज एक्स वाई, परपेंडिकुलर टू जेड इज एक्स वाई, परपेंडिकुलर टू वाई इज एक्स जेड। फाइन। सेकेंड थिंग जो हमें इसकी याद रखनी है वो हमें ये ध्यान करना है कि इक्विपोटेंशियल्स के बीच का स्पेसिंग क्या होगा। सो दो इक्विपोटेंशियल अगर मेरे
यूनिफॉर्म फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल के बीच का स्पेसिंग भी यूनिफॉर्म होगा, यानी इक्विपोटेंशियल्स विल बी इक्वी स्पेस। दो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं जब भी हमने इक्विपोटेंशियल के बारे में बताना है। वी हैव टू कीप दीज टू थिंग्स इन माइंड, एक तो उसकी डायरेक्शन और एक उसकी स्पेसिंग, मतलब रिलेटिव स्पेसिंग। और अगर हमें ड्रॉ करने हो तो लेट अस सपोज दिस इज माय यूनिफॉर्म फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। फील्ड एक्स एक्सिस है बच्चे, तो इक्विपोटेंशियल वाई जेड प्लेन, फील्ड वाई एक्सिस तो एक्स जेड। अब you can draw it like this also, dotted dotted, dotted means perpendicular, but then you have to very clearly write that it is yz and इन दोनों के बीच का स्पेसिंग आप कम से कम 3 बनाएंगे ताकि दोनों की स्पेसिंग आप इक्वल शो कर पाए। दिस इज dr1 is equal to dr2. One way is this. Another way is that what you do is that you draw the planes, the like I drew one previously also here. Suppose ये आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है बच्चे। If this is a uniform field, I have to draw the equipotentials. तो कम से कम आप 2 या 3, 2 से नहीं चलेगा काम, 3 बनाने पड़ेंगे। So I have to draw the planes. यूनिफॉर्म फील्ड है तो आप इस तरीके से इक्वी स्पेस प्लेन्स बना सकते हैं। फाइन। थर्ड वन like this. I'm not rubbing it deliberately because इसी पे बेस मैं आपको भी एक क्वेश्चन दे दूंगी। Fine. So these are the equipotentials. Y Z plane, अगर ये x axis है, so these are Y Z plane, and इन दोनों के बीच का स्पेसिंग dr1 और सेकेंड और थर्ड के बीच का स्पेसिंग dr2 शुड बी इक्वल। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मेरा इक्वल नहीं बना इन द नोटबुक, यू कैन ट्राई टू मेक इट इक्वल। एंड इफ एग्जाम में अगर आपके पास इतना नहीं है कि आप बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है पर क्वेश्चन हमें, देन यू मेंशन दैट dr1 is equal to dr2। तो थोड़ा अगर अप टू द स्केल नहीं भी बनेगा, बट इफ यू हैव रिटन दिस इज, सो इन 1 mark question if you take you draw the equipotential for the uniform field is a 1 mark question, then you have to keep it in mind ki half mark will be for this yz plane and half mark will be for their spacing. So equipotential for the uniform field will be equispaced surfaces perpendicular to the field. Fine. Now another question that I can give you in this case, that you draw the equipotential surface for the field which is decreasing. Let us suppose I say the field which is decreasing along y-axis. Let us suppose the field is decreasing along y-axis. So if the field is decreasing along y-axis, then equipotential will be in the xz plane. First thing. Second thing, equipotential. अब अगर field decrease हो रहा है, for dv to be constant, same thing you have to write. For constant dv is inverse proportion to dr. It means that spacing between them should increase. Spacing between them should increase in the direction of field. In the direction of field which is decreasing. Field decrease हो रहा है तो इक्विपोटेंशियल्स के बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या होगा? इंक्रीज. So it will be like, I draw again. And this is the case of the point charge. ये जो बनी हुई है ये आपकी point charge की। अगर मैं इसके इक्विपोटेंशियल्स बनाऊं, so I will draw, I will mention this as y-axis because हमें y के परपेंडिकुलर प्लेन बनाने थोड़े डिफिकल्ट होंगे, तो आप इसको y-axis ले लीजिए कि ये मेरी फील्ड की डायरेक्शन है। आप फील्ड की डायरेक्शन y-axis लीजिए एंड फील्ड इज डिक्रीजिंग। फील्ड इज डिक्रीजिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, यानी फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो इक्विपोटेंशियल्स मेरे इस डायरेक्शन में, उनके बीच का स्पेसिंग इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। यानी आई ड्रॉ वन इक्विपोटेंशियल लाइक दिस, another like this and another like this। तो बच्चे जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये
कि इक्विपोटेंशियल के बीच का जो स्पेसिंग है वो हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए। फील्ड यहाँ डिक्रीज हो रहा है, सो क्लियरली दिख सकता है ये dr1। आप इन दोनों के बीच का स्पेस बिल्कुल बहुत ज्यादा कर दो, dr2। सो फील्ड अगर इस रीजन में डिक्रीज हो रहा है तो स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल्स इस रीजन में क्या होगी, इंक्रीज। सो अगर फील्ड यहाँ डिक्रीज हो रहा है विच मीन्स कि इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड इक्विपोटेंशियल शुड बी क्लोजली स्पेस्ड, यानी यहाँ फील्ड ज्यादा है, इधर फील्ड अगर मैं यहाँ E1 लिखूं, यहाँ E2 लिखूं, यहाँ E3 लिखूं, तो इट मीन्स E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3। फाइन। तो E1 E2 E3 अगर इस ऑर्डर में फील्ड कम हो रहा है तो dr1 इज लेस देन dr2। फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, और आप इस पे एग्जैक्ट प्लेन लिख दीजिए। मैंने इसको y एक्सिस ले लिया, पॉजिटिव y एक्सिस। सो फील्ड इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो इक्विपोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसी का हमारे पास ये भी आ सकता है, फॉर द फील्ड विच इज इंक्रीजिंग अलोंग द z एक्सिस। तो अगर z एक्सिस होगी तो xy प्लेन्स होंगे, फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इक्विपोटेंशियल के बीच का स्पेस डिक्रीज होगा। इसका आप ये दूर बनाइएगा और नेक्स्ट क्लोज बनाइएगा। बना लेंगे आप ये वाला, आई सपोज। सो इफ यू टेक इंक्रीजिंग फील्ड, लेट अस सपोज फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग z एक्सिस, तो इक्विपोटेंशियल क्या होंगे बच्चे, xy प्लेन, और उनके बीच का रिलेटिव स्पेसिंग क्या होता जाएगा, फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उनके बीच का रिलेटिव स्पेसिंग जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये फर्स्ट फील्ड इक्विपोटेंशियल, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल, और ये थर्ड इक्विपोटेंशियल। सो फील्ड आपका इस रीजन में इंक्रीज हो रहा है, यानी E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3। इस रीजन में फील्ड E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है। तो जितना, और ये प्लेन्स हमारे होंगे XY प्लेन, और ये मैंने कौन सी डायरेक्शन ले ली, Z एक्सिस। So in that case, this is also XY plane, this is also XY plane. इन दोनों के बीच का dr1, इन दोनों के बीच में dr2. So dr1 is greater than dr2. जहाँ फील्ड इंक्रीज हो रहा है वहाँ इक्विपोटेंशियल के बीच का स्पेसिंग डिक्रीज हो रहा है, जहाँ फील्ड डिक्रीज हो रहा है वहाँ इक्विपोटेंशियल के बीच का स्पेसिंग इंक्रीज हो रहा है। Then for the point charge, there will be concentric spheres. This will be one sphere, this will be another sphere, this will be another sphere. So as you go away from the point charge, the field decreases. This is also decreasing field. So if the field decreases, it means इक्विपोटेंशियल के बीच का स्पेसिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इन दोनों के बीच का स्पेसिंग कम है, इनके बीच का स्पेसिंग ज्यादा। So as you go away from this, the distance between the equipotentials goes on increasing. This question is there in HCV. आपको HCV के questions करने हैं। Before I start doing these questions, but this is exactly the similar question, 62 question is there in which he has drawn the equipotentials and he is asking what can you say about the direction of the field. We'll do these questions. Before that, there is one important point that is left, is basically the potential of a shell. I think you have got the PDF today. There are some points, page number जो आपको first page है उस पे आपके 6 points are written. If you can see that, then you will find that 6 points I have given you. In those 6 points, the first 3 points are regarding the field and the last 3 points are regarding the potential. So that we have already discussed. Field तो हम already discuss कर चुके हैं बच्चे। जो इसका आपके पास E, F, G और G 3 parts हैं। A, B, C, D जो parts हैं, they are regarding the field due to uniformly charged shell, field के internal point पे, field के external field shell के internal point पे, shell के external point पे, shell के surface पे। तो जो भी field हमने निकाले थे that we have already discussed in detail. shell को हम discuss कर चुके हैं। So now the equipotential is clear to you. So equipotential के अगर हम सारे points को समाप्त करते हैं, so the no work is required to be done to move a point charge on the equipotential surface. They are perpendicular to the field lines. The spacing between them goes on decreasing, and we have to draw the equipotentials for the different cases. Dipole का भी draw करना आ सकता है. As you can see, I have given you already in the notes. Concentric spheres होंगे positive charge के भी और negative charge के around भी.
Fine. Now I come to the 2 points. See बच्चे, potential of a hollow spherical shell and a solid sphere हमारे कोर्स में नहीं है, as it is derivation नहीं है, but we need the concept of potential in the conceptual question also and numerical also and JEE mains और NEET दोनों के लिए for all the exams हमें sphere की potential के बारे में पता होना चाहिए. So now what you have to do is that potential जो हमारा shell का होता है, although अगर आप ये वाला कंसेप्ट करते हैं, सपोज आई गिव सम चार्ज टू द शेल, कंडक्टिंग शेल है अगर, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल अगर है एंड आई गिव सम चार्ज टू इट. तो हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि चार्ज इनसाइड द शेल कैन नॉट रिसाइड, सो द होल चार्ज विल कम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. फाइन, बिकॉज वॉट एवर चार्ज यू गिव टू द शेल, हॉलो स्फेरिकल मेटालिक शेल, so the shell के अंदर चार्ज नहीं रिसाइड करेगा, so field inside the shell is zero and the whole charge comes on the outer surface of the shell. Fine. Now if the field inside is zero and I use the formula E is equal to minus dV by dr, so if field is equal to zero, this means potential is constant. So I already explained you कि शेल के सेंटर से लेके शेल के सरफेस तक हमारी पोटेंशियल जो होती है वो कांस्टेंट होती है. समथिंग लाइक दिस. इसका मैंने आपको ग्राफ भी ड्रॉ करके दिया था, बट आई एम अगेन टेलिंग यू, क्योंकि बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगर आपको नहीं आएगा तो आपको दिक्कत आएगी, प्लस मुझे इसको आगे थोड़ा सा रिलेट भी करना है. सो सेंटर ऑफ शेल से लेके सरफेस तक आपकी पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होती है बच्चे. y एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल लिया, x एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस लिया, एट r इज इक्वल टू r एंड उसके बियॉन्ड पॉइंट तक आपकी पोटेंशियल जो है इट डिक्रीजेस विद द इनवर्सली विद r. फाइन. अब इसको बच्चे ऐसे समझने में हमें लगता है कि बहुत इजी सी बात है, बट इफ आई से कि आई गिव इट इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, आई थिंक देयर इज वन न्यूमेरिकल आल्सो इन द ऑन द पेज नंबर 136 आपको HCV में क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे मैं इसको यूज भी करना पड़ेगा. आई गिव यू, मैं अभी एक न्यूमेरिकल आपको देती हूँ कि सपोज करो ये शेल है, इसी शेल को अगर मैंने कुछ चार्ज दिया, इफ इट इज अ हॉलो स्फेरिकल शेल द चार्ज विल कम ऑन द आउटर सरफेस और पोटेंशियल अंदर हमारी कांस्टेंट होगी. नाउ आई से फाइंड द पोटेंशियल. सपोज आई से कि शेल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट. आपको इस एग्जांपल से समझ में बहुत इजीली आ जाएगा. अगर मैंने एक शेल लिया है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड आई गिव सम चार्ज टू इट, कुछ मैंने इसको चार्ज दिया, सपोज करो 4 माइक्रोकूलम चार्ज मैंने इस शेल को दे दिया, सो दैट चार्ज हैज कम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल. नाउ आई कैन हैव फाइंड द फील्ड एट 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सॉरी कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 मेरा पर्पस था इनसाइड. Find the field at 5 centimeter. Find the field at 7 centimeter. Now, ये जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं, जो 7 पॉइंट्स में डिस्कस करना चाह रही हूँ, उसमें पहले 4 पॉइंट फील्ड के थे और वो सब आप अगर पॉइंट्स आपको आते होंगे देन ओनली यू कैन फाइंड द फील्ड्स. तो हमें पता है कि फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल इज 0. फील्ड ऑन द सरफेसेस, अगर मैं फील्ड की बात करती हूँ बच्चे शेल के, तो इनसाइड हमारा क्या होता है 0. ऑन द सरफेस क्या होता है बच्चे KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, अगर कैपिटल R इसकी रेडियस है तो, एंड एक्सटीरियर टू इट एक्सटर्नल पॉइंट के लिए मेरे पास क्या होगा KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. अगर इस पे चाहिए तो इसका डिस्टेंस है स्मॉल r. फाइन. इन्हीं के रिलेशन में अगर मैं पोटेंशियल करूं तो पोटेंशियल इनसाइड कांस्टेंट है बच्चे, पर है कितनी, इट इज KQ बाय कैपिटल R. ऑन द सरफेस भी पोटेंशियल मेरी KQ बाय कैपिटल R है एंड एक्सटीरियर पॉइंट के लिए KQ बाय स्मॉल r है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको बहुत इजीली समझ आएगा अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं. इन्हीं पॉइंट्स पे अगर आपको पोटेंशियल निकालनी है या आपको फील्ड निकालनी है. नाउ सपोज आई हैव टेकन द चार्ज स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस था 5 सेंटीमीटर एंड द चार्ज आई हैव गिवन द 4 माइक्रोकूलम. लेट अस सपोज now I want to find the field. Field at 2 centimeter. Field at 2 centimeter. 0, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ये वाला पॉइंट हो गया.
अगर ये 2 सेंटीमीटर पे है तो इस पॉइंट पे ये इंटरनल पॉइंट है, तो इंटरनल पॉइंट पे फील्ड मेरा क्या होगा, 0. फाइन. बट पोटेंशियल क्या होगी बच्चे, इंटरनल पॉइंट पे फील्ड 0 है बट पोटेंशियल है KQ/R. यानी चाहे मुझे 2 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल चाहिए बट पोटेंशियल लिखने के लिए आई विल हैव टू राइट KQ/5 सेंटीमीटर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी अगर पोटेंशियल इंटरनल पॉइंट पे चाहिए तो वो उतनी ही होगी जितनी वो सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है एंड इज इक्वल टू KQ/R. फाइन. 2 सेंटीमीटर पे फील्ड नहीं है बट पोटेंशियल KQ/5 सेंटीमीटर आएगी. 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट अगर मैं देखती हूँ तो दिस इज समथिंग, दिस पॉइंट, ये पॉइंट मेरा पहले P था, ये पॉइंट मेरा D है. फाइन. तो अब अगर ये मेरा P पॉइंट था और अब मैं D पॉइंट की बात करूं तो D पॉइंट मेरा ऑन द सरफेस है. तो ऑन द सरफेस तो फील्ड मेरा क्या होगा बच्चे, KQ/R² यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर. और पोटेंशियल क्या होगी, KQ/R यानी 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है. जो आपको नोट्स हैं उसमें अगर आप E पॉइंट पढ़ेंगे, देन E पॉइंट सेज दैट द पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट है वो. F जो है दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल एट एन इंटरनल पॉइंट इज सेम एवरीवेयर एंड इज इक्वल टू दैट ऑन द सरफेस. तो जो सरफेस पे थी पोटेंशियल इंटरनल पॉइंट पे, ये इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट पे और ऑन द सरफेस पोटेंशियल हमारी क्या है, सेम है. बट फील्ड जो है इंटरनली 0 है और सरफेस पे है KQ/R का स्क्वायर. ठीक है बच्चे. नाउ इफ आई कम टू द पॉइंट विच इज एक्सटीरियर टू इट, से दिस इज द पॉइंट, दिस इज एनी पॉइंट, से M. अगर मैं इस M पॉइंट की बात करूं तो M पॉइंट पे एट M कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट. और मैंने जो एग्जांपल है उसमें मेरे लिए M कौन सा पॉइंट है, लेट अस से 7 सेंटीमीटर. तो जो 7 सेंटीमीटर का पॉइंट है वो मेरा एक्सटीरियर पॉइंट है. तो उसके लिए फील्ड का रिलेशन KQ/r का स्क्वायर, KQ/r का स्क्वायर which is equal to KQ/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर. फाइन. यानी as if the whole charge has been kept at the center of the shell. For an external point, the field behaves for a hollow spherical shell. External point के लिए hollow spherical shell behaves as if the whole charge has been kept at the center of the shell. जो 4 माइक्रोकूलम का चार्ज तुमने पूरी शेल पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसकी वजह से M पॉइंट पे फील्ड वही आ रहा है एज इफ मैंने ये पूरा का पूरा 4 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ सेंटर पे रख दिया. अगर मैंने 4 माइक्रोकूलम का चार्ज सेंटर पे रख दिया है तो मेरा फील्ड 7 सेंटीमीटर पे KQ/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा. इट इज द सेम रिजल्ट फॉर द शेल ऑल्सो. एंड पोटेंशियल भी हमारी सिमिलर आएगी. पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट इज KQ/r या जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस होता है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? सो दीज पॉइंट्स आर गिवन. पॉइंट E है पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज थिन स्फेरिकल शेल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट इज KQ/r. फाइन. At an internal point it is KQ/R, the one we have done, and on the surface again KQ/R. तो बच्चे आपने ये ध्यान रखना है कि 5 सेंटीमीटर की रेडियस के शेल में 0 से लेके 5 तक पोटेंशियल KQ/5 आएगी. फाइन. और फील्ड 0 से लेके 5 तक 0 रहेगा. 5 पे भी KQ/5 आएगी बट 5 के बाद इट विल बी KQ/r which is the distance of the observation point. I hope it is clear to all of you. ठीक है बच्चे. Now take a screenshot of this and then we come to the next point. जो हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट कवर करना है इसी शेल को, ये तो मैंने आउटर सरफेस पे दिया. सपोज आई मेक अ कैविटी एंड आई कीप अ चार्ज हियर. सो नाउ व्हाट विल हैपन? मैंने एक्सटर्नल कोई चार्ज नहीं दिया,
Fine. I kept a charge of plus q at this point. अब now what will be the situation? Will we violate that law जो हमारा basic है कि field inside the hollow spherical shell has to be zero. And since field inside has to be zero, it means charge inside is also zero. अब अगर हमने एक hollow spherical shell ले ली और उसके सेंटर पे चार्ज रख ही दिया तो चार्ज कैन नॉट मूव, चार्ज अपने आप मूव करके बाहर नहीं आएगा. And simultaneously we cannot violate this also that the field inside the conductor has to be zero, charge inside conductor has to be zero. तो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, इस प्लस क्यू की वजह से जो इंडक्शन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बेसिस पे एनसीईआरटी हैज गिवन सो मेनी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड इवन इन द एंट्रेंस एग्जाम यू गेट अ नंबर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. What happens if you give a charge to the cavity in the hollow spherical shell? अगर आप hollow spherical shell की cavity पे एक charge रख देते हैं तो now will we be violating that law कि field inside is zero and charge inside has to be zero? Because charge को आपने रख ही दिया है, तो अब अगर आपका charge है तो उसकी वजह से field भी होगा, और अगर फील्ड होगा तो इसका मतलब कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को तो एक डायरेक्शन मिल जाएगी मूव करने की. एंड विदाउट गिविंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जस्ट बाय मेयरली गिविंग अ चार्ज, हमने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर ली. इसका मतलब आप खुद सोचिए ना, अगर चार्ज अंदर रख दिया और चार्ज अंदर ही रह जाएगा तो इसका फील्ड भी होगा. अगर फील्ड होगा तो फील्ड विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टिंग शेल, और अगर कंडक्टिंग शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फोर्स लगेगा तो दे विल स्टार्ट मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हिच विल कंस्टिट्यूट करंट. करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर आप हीट एनर्जी, सब कुछ ही जनरेट कर सकते हैं, व्हिच इज practically you can say is not feasible or against the law of conservation of energy. Fine. So this is basically when we keep a charge inside the cavity. So इसमें हमारे पास actually में इंडक्शन होगी. Fine. इंडक्शन इस हिसाब से होगी कि इस प्लस क्यू की वजह से इसके इनर सरफेस पे चार्ज आएगा माइनस क्यू और इसके आउटर पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू. सो द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस दैट what will be the charge? Suppose if I take a hollow conductor, fine, I give a charge of 6 microcoulomb to this, which is obviously अगर मैंने इसको दिया तो वो इसके outer surface पे आ गया. Now I took a cavity and in the cavity I kept another charge of 4 microcoulomb. Now what will be the charge density on the inner surface, on the outer surface, which है हमारे questions आ रहे हैं. So what actually happens, जब आप ये 4 माइक्रोकूलम चार्ज देंगे तो इसकी वजह से इसके इनर पे आ जाएगा -4 और आउटर पे आ जाएगा +4 माइक्रोकूलम चार्ज. सो द सिमिलर वे अगर आपने +q चार्ज यहाँ रखा तो इसकी इंडक्शन ये हो गई कि -q ऑन द इनर सरफेस एंड +q ऑन द आउटर. और अगर आपने आउटर पे कुछ और ऑलरेडी भी दे रखा था लाइक इन दिस केस, तो वो भी इस पे आ जाएगा, मतलब वो तो आउटर पे ही रहेगा. So in this case you can see कि we have not violated anything. अब आपके पास नेट चार्ज इनसाइड क्या हो गया, जीरो. जब नेट चार्ज इनसाइड जीरो हो गया तो नेट फील्ड इनसाइड भी हमारे पास जीरो हो गया. So we have not violated anything. So अगर आप कैविटी में चार्ज रख देंगे तो उतना ही चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट उसके इनर सरफेस पे आएगा. अब वो भी जनरेट तो हो नहीं सकता, तो इसकी एक्चुअली इंडक्शन हो जाएगी. इस कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से मूव करेंगे कि यहाँ -q चार्ज आ जाएगा और यहाँ +q आ जाएगा, सो दैट नेट चार्ज इनसाइड इज स्टिल जीरो. अभी भी हमारे पास अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा एंड आउटर सरफेस पे हमारे पास +q चार्ज आ जाएगा. सो अगर अब आपको चार्ज डेंसिटी चाहिए इनर सरफेस की, तो इनर सरफेस की चार्ज डेंसिटी तो जीरो है क्योंकि +q एंड -q, बट आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी आएगी kq/r². एंड इन दिस क्वेश्चन ऑफ कैविटी 1 वेयर in this question where I kept 4 microcoulomb at the cavity, अगर मैंने 4 माइक्रोकूलम यहाँ रखा बच्चे तो इस 4 की इंडक्शन हो गई -4 यहाँ और इसकी इंडक्शन हो गई +4, मतलब इस +4 की वजह से -4 एंड +4. और अगर ऑलरेडी मैंने 6 दिया था तो इन दिस केस नेट चार्ज इनसाइड अभी भी क्या हो जाएगा, q इनसाइड हैज टू बी इक्वल टू 0. इसके अंदर नेट चार्ज 0 हो गया और आउटर सरफेस पे जो मेरा चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा q plus q which means 6 plus 4 which means 10 microcoulomb. Is it clear? ठीक है बच्चे.
सो ये कैविटी वाले क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन। सपोज इसमें से अब अगर मुझे इसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी, आई वांट टू राइट द पोटेंशियल। द मेन थिंग दैट आई वांट टू टीच यू कि अगर हमें शेल के सरफेस पे पोटेंशियल लिखनी होती है बच्चे, तो इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, इंटरनल चार्जेस एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल की वजह से अगर मैं इस शेल की रेडियस आर लेती हूँ बच्चे, तो इसकी पोटेंशियल 3 चार्जेस की वजह से होगी। एक तो इस प्लस क्यू की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से आएगी के क्यू बाय कैपिटल आर जो इसकी रेडियस थी। इस माइनस क्यू की वजह से माइनस के क्यू बाय कैपिटल आर। इस प्लस क्यू की वजह से प्लस के क्यू बाय कैपिटल आर। फाइन, सो इट मीन्स this will be added up to 0, only potential will be kq by r as if, क्योंकि हमने दिया भी पॉजिटिव चार्ज था। अब आइडियली स्पीकिंग भी पोटेंशियल kq by r ही होनी चाहिए, तो इंडक्शन के बाद भी यही आएगी। बट इफ आई ग्राउंड इट, नाउ आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस अ कांसेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग आल्सो हियर। अगर मैं इसको ग्राउंड कर देती हूँ बच्चे, ग्राउंड का मतलब होता है अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट। नाउ वी हैव बीन टेलिंग, मैंने आपको फर्स्ट वन जब फील्ड भी कराया था वहां पे मैंने आपको ये बता दिया था कि 0 वोल्ट का मीनिंग क्या होता है। 0 वोल्ट मीन्स अर्थ इज एक्चुअली अ वेरी बिग कंडक्टर टू विच वी कैन गिव इनफाइनाइट चार्ज and we can take infinite charge from it. It is a source of infinite capacity. It is a sink of infinite capacity. आप अर्थ में चाहे जितनी मर्जी चार्जेस डालते जाइए, चाहे उसमें से जितने मर्जी चार्जेस निकालते जाइए, the potential of the earth will not change from 0 volt. It is always going to remain the 0 volt only. Fine. तो अब in that situation, अब अगर मैंने इसको अर्थ कर दिया तो इसका आउटर चार्ज जो है यही के क्यू बाय आर जो है ये आपका अर्थ में फ्लो कर जाएगा। तो इसकी नेट पोटेंशियल क्या होगी, जब ये चार्ज ही नहीं रहा तो अब इसकी पोटेंशियल में से ये पार्ट तो हट गया। जब ये पार्ट हट गया तो इट मींस प्लस क्यू और माइनस क्यू की पोटेंशियल वैसे ही कैंसिल आउट हो गई एंड अदरवाइज आल्सो अर्थ इज एट 0 वोल्ट, तो ये कंडक्टर की पोटेंशियल भी क्या होगी 0 वोल्ट। तो अर्थिंग जहां भी हो रखी होती है विच मीन्स 0 वोल्ट। आप लोग देखते हैं हमारे घरों में भी जो 3 पिन प्लग होते हैं बच्चे, वी हैव 3 वायर्स, 2 live wires, red and black, and 1 is a green wire. So green wire is a earth wire, that is for 0 volt. So if by default any charges, कुछ शॉर्ट सर्किट, कुछ फॉल्टी सर्किट हो गया, कुछ शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, कहीं कुछ फ्लो आ गया, वोल्टेज अप डाउन हो गई, चार्जेस आ गए, तो वो चार्ज अगर आपकी अर्थिंग नहीं होगी तो आपके यू विल गेट अ शॉर्ट। बट अर्थिंग का पर्पस ही वही होता है 3 पिन प्लग्स में, दैट द चार्ज फ्लोज टू द अर्थ and earth is always at 0 volt and we are, whenever we are doing earthing, which means we are bringing it to 0 volt. Now in this regard we have to do 2 very important questions. We will open up the page number 137. मैं explain कर देती हूँ. This is a solved question of H.C. Verma, but he has taken a very long approach, means actually he has taken it ab initio method. Like उसने यही पोटेंशियल और यही फील्ड निकालने के लिए पूरा गॉसेस थ्योरम लगाया, बट वी विल नॉट यूज द गॉसेस थ्योरम ओवर हियर. दिस इज पेज नंबर 136 एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ गॉसेस लॉ, नॉट द है ये पोटेंशियल का कंसेप्ट, बट ही हैज गिवन इट इन द गॉसेस लॉ सेपरेटली. सो नाउ द क्वेश्चन सेज, आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन. इफ यू हैव H.C. Verma you can open it up, otherwise I will give the screenshot, means PDF आपको इसकी क्लास के बाद में दे दूंगी. अभी मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ. सो यू रीड आउट द क्वेश्चन. अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻8 कूलम is given, is distributed uniformly on the surface of a sphere of radius 1 centimeter. See, read the question and start writing whatever is given to you, but I am not going to follow its approach. Fine. He has taken a charge, some charge 4 × 10⁻8 coulomb is distributed uniformly on the surface of a sphere of radius 1 centimeter. एक 1 सेंटीमीटर की रेडियस का स्फीयर लेके इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपने चार्ज कर दिया. फाइंड सम चार्ज इज गिवन टू यू, व्हाटएवर इज गिवन आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट, आई एम नॉट गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस. द सेकंड पार्ट ही सेज इट इज कवर्ड बाय द कंसेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. इसको आपने एक हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल से बेसिकली कवर कर दिया, जिसकी रेडियस जो थी वो हमें दे रखी है इसका 1 सेंटीमीटर का. फाइन, दिस इज से 1 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. नाउ ही सेज फाइंड द फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. ये 5 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर. तो पॉइंट P 2 सेंटीमीटर अभी मैंने बताया
इस चार्ज स्फीयर के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है। शेल और स्फीयर का एक्सटर्नल पॉइंट का फील्ड सेम होता है। मैंने अभी शेल का लिखा था k∼r²। स्फीयर का भी एक्सटर्नल पॉइंट का यही होता है, एज इफ द होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल। फॉर द होलो स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर दे बोथ बिहेव लाइक द पॉइंट चार्ज फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट। सो k∼r², r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो गई 2 सेंटीमीटर। सो दिस यू विल कैलकुलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ही हैज टेकन इट, he has used the Gauss's law to find the whole derivation, पूरा इसने ab initio से करके फाइनली जो यूज किया है, बट यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग, you have to simply write this formula. मेरे लिए this is a very simple question. Now the second part of the question is the important part. The beauty of this question lies in this only. A charge of 6 × 10⁻⁸ coulomb is placed on the hollow sphere. अब hollow sphere पे भी आपने कुछ चार्ज दे दिया 6 × 10⁻⁸ as placed on the hollow sphere. Find the surface charge density on the outer surface of hollow sphere. On the outer surface of hollow sphere. यहाँ आपने कितना चार्ज दिया, इसने इसको 6 × 10⁻⁸ और इसको दिया था 4 × 10⁻⁸। यानी एक स्फीयर दिया, उसको आपने 4 × 10⁻⁸ दिया। उसके बाहर मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक सॉलिड बॉल है आपकी मेटल की, उसको आपने कुछ चार्ज दिया, वो उसके सेंटर से लेके एंड उसके आसपास सराउंडिंग एक शेल, एक हॉलो स्फीयर ले लिया मेटल का, वो उससे एनक्लोज कर दिया। मतलब ये हॉलो स्फेरिकल शेल है मेटेलिक और उसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास। फाइन, इसको आपने चार्ज दिया 6 × 10⁻⁸ और इसको चार्ज आपने दिया 4 × 10⁻⁸। Now he is saying find the surface charge density on the outer surface. अब आपको कहाँ पे surface charge density चाहिए? outer पे। तो बच्चे अब आप देखिए, जो आप ये दिस सेम सिचुएशन जो कैविटी वाला मैंने आपको दिया है, कैविटी भी है, यहाँ पे आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसको आपने 4 × 10⁻⁸ को मैं कौन 4 यूनिट चार्ज दिया और इसके बाहर आपने एक शेल रख ली, उसको आपने 6 यूनिट चार्ज दिया। अब अगर शेल की सिचुएशन देखो बेटा, तो शेल के अंदर तो 4 यूनिट चार्ज पड़ा है, विच इज नॉट पॉसिबल। द नेट चार्ज इनसाइड द शेल हैज टू बी इक्वल टू 0। सो इस +4 चार्ज की बेसिकली आपके पास इंडक्शन हो जाएगी, दिस विल बी -4 एंड दिस विल बी +4। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो आपके पास शेल है, उस शेल के इधर, मतलब ये मैंने शेल यहाँ डबल सरफेस की बनाई है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4 और यहाँ आपके पास आ जाएगा +4। तो ये जो इधर वाला +4 था, प्रैक्टिकली इसकी वजह से हमारे पास यहाँ जो मैंने +4 रखा, इसकी इंडक्शन हो गई यहाँ इस शेल के इनर पे -4 और आउटर पे +4। तो शेल के लिए नेट चार्ज इनसाइड द शेल 0 हो गया और उसकी चार्ज डेंसिटी आउटर पे कितनी हो जाएगी? चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, दैट विल बी 6 + 4 यूनिट डिवाइडेड बाय 4 पाई, जो भी इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई एम नॉट राइट, मींस यू हैव टू राइट इट इन द प्रॉपर यूनिट्स। प्रैक्टिकली मैं यूनिट्स में नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको समझा दिया है कि आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा 6 यूनिट एंड 4 यूनिट, यानी 4 × 10⁻⁸। तो सिग्मा हो जाएगा Q + Q। जैसे अगर मैं इसको वैसे लिखूं कि मैंने स्मॉल स्फीयर को चार्ज दिया स्मॉल q, इसको दिया कैपिटल Q, तो इस +Q की वजह से यहाँ पे आएगा -Q और यहाँ आएगा +Q। तो नेट चार्ज इनसाइड 0 हो गया और आउटसाइड चार्ज हो गया Q + Q डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 का स्क्वायर। अगर ये r2, मैंने जेनरिक केस कर दिया आपके लिए, अब आप इस केस में कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज आपके पास ये था, एरिया आपके पास 4 पाई r² आ जाएगा, तो 4 पाई r की जगह हमारे पास आ जाएगा r2 जो भी है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सो दिस शुड बी द आंसर। 10 × 10⁻², -2 नहीं है शायद, -8 है। व्हाटएवर चार्जेस की वैल्यू जो दे रखी है, जो रेडियस दे रखी है, वो आपने पुट करना है। द मेन थिंग इज आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपने एक हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर कुछ चार्ज दिया, तो उसकी वजह से आउटर सरफेस पे आपके पास चार्ज इंड्यूस होगा। तो अगर आपने +Q चार्ज यहाँ रखा और एक शेल रख ली, तो उसकी इंडक्शन हो जाएगी यहाँ -Q और यहाँ +Q।
उसके अलावा कुछ अगर आपने शेल को अपना एडिशनल चार्ज दिया था तो वो भी उस पर रहेगा अगर मैंने क्यू डैश दिया था। फाइन, नाउ इज अनदर, ये तो आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन था बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इफ यू गो फॉर द NCERT और टॉक अबाउट द बोर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू टॉक अबाउट द नीड देन ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो बस आपको इसमें कैविटी में इंडक्शन करनी होती है विच यू नीड टू रिमेम्बर। फाइन, नाउ आई कम टू अनदर टाइप ऑफ द शेल। शेल की पोटेंशियल के लिए एक क्वेश्चन, दिस वन क्वेश्चन इटसेल्फ इज वेरी गुड क्वेश्चन टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ कंसेप्ट्स। मतलब इससे आपको ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा कि सेंटर से लेके शेल तक आपके पास शेल की रेडियस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वो इसे एक क्वेश्चन से बहुत क्लियर हो जाएगा। दिस इज सॉल्व क्वेश्चन 4। 3 hollow spherical shells are there. I am reading out the question and drawing the figure. Figure shows 3 concentric thin spherical shells A, B. बच्चे these are not the stairs अच्छे नहीं बन रहे because board is damn too smooth. C. My proper board is in the academy and due to lockdown we have not been able to open it up. So I have to compromise with the infra. Right now at home I have this small board only. Fine. With the radius small a, small b and small c. Radius आपको दे रखी है तीनों shells की A, B, C. So it says figure shows 3 concentric thin spherical shells A, B, C of radii small a, small b, small c respectively. The shells A and C are given the charges Q and minus Q. A को Q दिया, C को minus Q दिया. And the shell B is earth. Shell B हमने ground कर दिया. Find the charges appearing on the surfaces of B and C. आपको B और C के surfaces पे charges बताने हैं. So you have to do nothing but to induce the charges. देखिए बच्चे, सबसे पहले A को चार्ज दिया, वो A के आउटर सरफेस पे आ गया, स्मॉल q तो A के आउटर सरफेस पे आ गया. अब अगर मैं B का स्टेटस देखूं तो B के अंदर चार्ज नहीं हो सकता, तो B के लिए इस चार्ज की इंडक्शन होगी, यहाँ होनी है माइनस क्यू, आइडियली स्पीकिंग यहाँ होना चाहिए था प्लस क्यू. अब ये देखिए बच्चे, अगर ये अर्थ ना होता तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू. माय क्वेश्चन वाज ओवर, चेक इट आउट. अगर ये क्यू है, इसकी वजह से बी शेल के अंदर चार्ज नहीं हो सकता, तो बी के लिए इंडक्शन होगी यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू. ठीक है, अब सी के अंदर आपके पास ये क्यू माइनस क्यू तो खत्म हो गया, फिर प्लस क्यू सी के लिए बच रहा है. सी के अंदर भी चार्ज नहीं हो सकता, तो सी में भी इंडक्शन होगी माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. तो अब इस हिसाब से ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते, तो आउटर चार्ज डेंसिटी ऑन सी वाज 0. फाइन, दिस वाज द क्वेश्चन हैड दिस नॉट बीन अर्थ. अगर मैं इस सेकंड शेल को अर्थ ना करती तो हमारी चार्जेस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू इस तरीके से आते. अब ये जो एक अर्थिंग कर दी, इससे मुझे जो एक चीज मिल गई वो ये कि पोटेंशियल ऑफ B इज 0. B की पोटेंशियल नहीं है, B इज एट 0 वोल्ट बिकॉज इट हैज बीन अर्थ. ये हमें गिवन है. तो अब हमें ये गिवन है, तो बच्चे इसका मतलब B पे जो प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होने थे वो इंड्यूस हुए होंगे, बट उसमें से कुछ चार्ज आपके फ्लो डाउन कर जाएंगे टू द अर्थ in order to make its potential to be equal to 0, क्योंकि B की पोटेंशियल सिर्फ B के चार्जेस की वजह से नहीं है, B की पोटेंशियल A के चार्ज की वजह से भी है और C के चार्ज की वजह से भी है. C का चार्ज B के लिए एक्सटर्नल पॉइंट होगा और A का चार्ज B के लिए इंटरनल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा. फाइन, तो ये प्लस क्यू डैश, ये माइनस क्यू डैश, ये प्लस क्यू डैश होगा प्लस क्यू ही, बट उस प्लस क्यू में से कुछ चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा, सो दैट द रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ शेल B इज 0. B शेल की जो पोटेंशियल है वो हमारी 0 होगी. फाइन, नाउ आई राइट डाउन द पोटेंशियल ऑफ B. B की पोटेंशियल 0 है, वो हमें पता है, बट वो है किस किस की वजह से? वो हमारी इस क्यू की वजह से है ड्यू टू शेल A,
वो इस माइनस क्यू की वजह से भी है, वो इस प्लस क्यू डैश की वजह से भी है, वो इस माइनस क्यू डैश की वजह से भी है, और वो इस क्यू डैश माइनस क्यू की वजह से भी है। तो हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले वीबी 0 है, ये तो मुझे पता है, बट वीबी है किस किस की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू ऑन ए के प्लस क्यू की वजह से। इस प्लस क्यू की वजह से बी की पोटेंशियल क्या है, मैं V1 लिख रही हूँ, फाइन। सो V1 विल बी इक्वल टू के क्यू, और ये इसके लिए एक इंटरनल पॉइंट है, तो इंटरनल भी अगर कोई पॉइंट होता है तो उसकी पोटेंशियल वही होती है जो सरफेस पे आती है, तो इट विल बी के क्यू बाय बी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, दे प्रेफर टू राइट के क्यू बाय, उन्हें लगता है ए क्यू है, मतलब ए शेल पे है तो इसका डिस्टेंस ए है तो के क्यू बाय ए होगा। ये के क्यू बाय ए नहीं होगा, क्योंकि हम बी की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो बी के लिए बी के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से जो पोटेंशियल होगी वो के क्यू बाय कैपिटल आर होती है। शेल के अंदर इनसाइड से लेके फ्रॉम इनसाइड टिल सरफेस तक हमारी जो पोटेंशियल होती है टिल आर, हमारी पोटेंशियल के क्यू बाय आर होती है। तो यानी बी आएगी ड्यू टू माइनस क्यू एट बी, V2 के माइनस के क्यू बाय बी, ड्यू टू क्यू डैश एट बी, V3 के क्यू डैश बाय बी। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बी पे ही माइनस क्यू है तो माइनस के क्यू बाय बी, बी पे ही प्लस क्यू डैश है तो प्लस के क्यू डैश बाय बी। सिर्फ ये एक पॉइंट है जो आप गलती करते हैं। अब बचा सी की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू डैश सॉरी माइनस क्यू डैश ऑन सी, जो उसके इंटरनल पे है। अब ये वाले चार्ज इसके लिए क्या है, एक्सटर्नल चार्ज है, तो एक्सटर्नल की वजह से इसकी जो पोटेंशियल होगी वो हो जाएगी माइनस के क्यू डैश बाय सी। फाइन, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर, जितना ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है, एंड ड्यू टू क्यू डैश माइनस क्यू ऑन सी, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रही है वो V5 आ रही है, एंड दिस इज इक्वल टू के इंटू क्यू डैश माइनस क्यू डिवाइडेड बाय सी। सो नेट पोटेंशियल जो है वो है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, एंड दिस नेट इज इक्वल टू 0. This finishes the question. You have to simply add them up. This k q by b, this k q by b, they will nullify each other. V1 और V2 तो इक्वल और ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा V3 V4 V5। तो जब आप V3 V4 V5 ऐड करेंगे तो VB मेरे पास आ जाएगा, k कॉमन ले रहे हैं बच्चे, q डैश बाय b, फाइन, देन माइनस q डैश बाय c प्लस q डैश बाय c माइनस q बाय c। लीजिए, इसमें भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू k इंटू क्यू डैश बाय b माइनस q बाय c, एंड दिस इज द पोटेंशियल VB विच हैज टू बी इक्वल टू 0। तो k भी आपका 0 हो जाएगा। दिस मीन्स q डैश बाय b इज इक्वल टू q बाय c, which means q dash is equal to b by c of q. I hope it's correct. So q dash comes out to be b by c of q. And now अब आपको जो भी चार्ज चाहिए, हमें b पे चार्ज चाहिए, the question says that find the charges appearing on the surfaces of b and c. तो b के outer surface पे q dash by c था, तो q dash की वैल्यू डाल देंगे। इनर पे माइनस क्यू है, आउटर पे ये है, और इधर इनर पे माइनस क्यू डैश है, आउटर पे क्यू डैश माइनस क्यू है, एंड जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर. वी हैव सॉल्व्ड इट प्रैक्टिकली, वी हैव कंप्लीटली सॉल्व्ड इट. ठीक है बच्चे, आई होप इट इज क्लियर. कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए. फाइन. So now we have to do the questions of potential and potential energy. Potential की questions are beginning from 53. So 53, 54, 50 ये हो गए बच्चे आपके या नहीं हुए? So I think we are
रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं एनर्जी के कुछ क्वेश्चन इजी वाले हैं जस्ट फॉर्मूला बेस्ड वो डिस्कस कर लेती हूँ, फिर पोटेंशियल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में. तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद द कैपेसिटर. सो ऑन संडे आई कीप अ स्पेशल क्लास फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. तो एक क्लास अलग से रख देंगे जिसमें हम पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. ऑन संडे विल कीप अ क्लास फॉर 1.5 hour in which we'll do some numericals. Fine. So before that we have these questions of energy. So 66th question is how much work has to be done in assembling the 3 charged particles at the vertices of an equilateral triangle 2, 4 and 3 units. Shall I rub it?